evening talk on Value Talks platform. The talk today is about home loan balance transfer, as to what are the situations under which it would be beneficial for you to transfer your home loan. I request the host for today, Colonel Rohit Agarwal sir, to please come and take over the talk. Our guest today is Mr. Shiv Yadav, who has more than a decade of experience in home loans and other real estate and property related loans. Good evening, sir. Thanks, Vipul, and welcome everybody, and a warm welcome to Shiv also from all of us at Value Talks. Good evening, sir. Thank you so much. Shiv, would request you to quickly just introduce yourself to the audience. So basically, sir, myself, Shiv Yadav, I'm into loans and mortgages since 2010. So prior to that, I was working with one of bank, and in end of 2009, I left the bank and start my own. So since then, we are associated with more than 25 banks, and we deals in housing loans, loans against properties, SME loans like working capital, CC, bank guarantees, LC, and other facilities. That's all about me. Right, thank you. So I'm sure the audience is going to benefit from your experience and knowledge. And so how we are going to conduct this evening is that we are going to, I'm going to have some questions for Shiv, which he will answer, and he can please feel free to add on to, because my knowledge about finance and loans is also limited. It's limited to the loan that I have taken for my house. So please feel free to add on to the question that I'm asking you, and thereafter, of course, we will throw it open to the audience for their questions. So Shiv, before we start, I just want to ask you, traditional Indian mindset is that loans are bad. Karza lena jo hai, wo, of course, all of us now have got over that to some extent, and we use housing, especially, then car loans, and we do take loans. Now education loans has become a very big thing. So can you just talk about, if someone has the option of using their own finance or taking a loan, what are the advantages of taking a loan, before I ask you about the loan transfer itself? Just this concept of loan for my own benefit and for the benefit of the audience. We can break this mindset. सर सी I'm sure जो माइंडसेट है वो तो काफी हद तक वैसे टूट चुका है, क्योंकि लोग आजकल तो सर 20,000 का फोन भी लोन पे लेते हैं. So that shows कि हमारा जो यंग जनरेशन उनका माइंडसेट क्या है. So they are pretty much open about availing the loans. तो आज छोटे से छोटा कोई भी गैजेट्स है या फिर कोई भी इस तरह का वाइट गुड है, वो लोन पे अवेलेबल है. So as low as 10,000 से लेके और आप 2-3 लाख रुपए का कोई भी गैजेट हो, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं. तो हाउसिंग लोन तो एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई है. ठीक है. So let's come to housing loan. अगर मैं गुड़गांव की प्रॉपर्टीज की बात ही करूं, तो गुड़गांव की जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यू एवरेज वैल्यू अगर आप 1 करोड़ लोगे, तो आपको ये देखना है कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास 1 करोड़ होना चाहिए, अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो. सो 1 करोड़ अर्न करने के लिए हाउ मच टाइम यू विल टेक फॉर दैट मनी. मे बी जब तक आप 1 करोड़ रुपए आएगा, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,20 हो चुकी होगी, 1,30 हो चुकी होगी. तो कहीं ना कहीं उस ब्रिज को, जो गैप है, उसको ब्रिज करने के लिए यू हैव टू टेक द लोन. ठीक है. एट द सेम टाइम सर, अभी पिछले 10 साल में, 15 साल में जो एवरेज अर्निंग है एक इंडियन की, वो भी काफी हद तक बढ़ गई है. तो उनकी रिपेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है. आई एब्सोल्युटली एग्री कि रियल एस्टेट वैल्यूज भी उसी रेशो में बढ़ गई हैं, बट द काइंड ऑफ सैलरी क्लास वी हैव इन गुड़गांव, सो द पीपल हैव मच बोरोइंग कैपेसिटी. Right, thank you. So today we're going to talk about balance transfer. So if you can, just explain briefly, what is balance transfer of loans? So basically, transferring your loan from existing bank to new bank is called balance transfer. अगर मैं सिंपल आपको बोलूं तो जैसे आपके मोबाइल ऑपरेटर हैं, आपके मोबाइल के जो कनेक्शन है, यूजुअली आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जैसे ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही हाउसिंग लोन भी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है. So that is called balance transfer, or in shorter form we called BT. So what is the why would I go in for a balance transfer? Like to take my case, I have a loan which I had taken for my house from ICICI Bank, and now you tell me that someone comes to me and says कि अब आप इसको HDFC में transfer कर दो. So why should I do that? What is my advantage in doing that?
सर देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। जो मेजर रीजन जो बीटी का बैलेंस ट्रांसफर का होता है वो होता है बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपको एक्स रेट दे रहा है और मार्केट में वाई बैंक अवेलेबल है जो आपको उससे बेटर रेट दे रहा है। तो यूजुअली मेजर रीजन होता है बैलेंस ट्रांसफर का, वो ये होता है कि आपको नया बैंक आपके एग्जिस्टिंग बैंकर के कंपैरिजन में एक बेटर रेट दे रहा है। ठीक है। दूसरा कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी होती है बोरोवर की। कई बार ऐसा होता है कि आपको एडिशनल फंड्स भी चाहिए जो मे बी आपका एग्जिस्टिंग बैंक उतना पैसा आपको नहीं दे पा रहा है, कंसीडरिंग योर एलिजिबिलिटी और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और द वेरियस फैक्टर। बट मार्केट में दूसरा बैंक अवेलेबल है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको कई बार अपना लोन ट्रांसफर करना होता है बिकॉज आपको कुछ टॉप अप अमाउंट या किसी भी तरह के पैसे की जरूरत है अदर देन दैट एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन। ठीक है सर। थर्ड, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका लोन किसी टेन्योर के लिए चल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है सर कि आपने एक लोन लिया है एक्स टेन्योर के लिए, आपने रिपे कर दिया है, बट आप करंटली उसकी ईएमआई रिपे करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका टेन्योर वापस से बढ़ जाए सो दैट कि आपकी ईएमआई कम हो जाए। फॉर दैट पर्पस पीपल यूज्ड टू ट्रांसफर देयर एक्जिस्टिंग लोन टू सम अदर बैंक्स। Right. So if I can summarize, one is to get a better interest rate or lower interest rate. Second is to increase the periodicity of the loan, more tenure, or get a better deal. So those are some of the reasons that you will want to. Rate of interest is the major thing. People use to transfer for the rate of interest. Right. So as a rough this thing, can you give a example of? I mean, you would be knowing कि current कहाँ है. तो अगर suppose let's take my case, मेरा ICICI बैंक में है, तो अगर which is the lower one that I can transfer to? But you have to see that कि कितना है. It is advisable कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा रेट मार्केट के कंपैरिजन में महंगा चल रहा है, आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो आपसे मार्केट से ज्यादा रेट चार्ज कर रहा है, सबसे पहले तो आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक को अप्रोच कीजिए, दैट इज द बेस्ट वे। ठीक है, उनको बोलिए कि रेट ज्यादा चल रहा है, मार्केट में ये चल रहा है, आप मेरा रेट कम क्यों नहीं कर रहे हो, या जो भी रीजन है, या तो आपको रीजन देंगे जी हम नहीं कर सकते हैं जो भी है, या फिर वो क्या करेंगे कुछ आपसे नॉमिनल से कन्वर्जन फीस लेंगे और कुछ फॉर्मेलिटीज कराएंगे आपसे, और वो मे बी आपको मार्केट रेट जो चल रहा है उस पर आपका रेट कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, राइट। बट कई बार नहीं भी करते हैं, क्योंकि सर होता क्या है कि हर बैंक के जो रेट है वो उसकी जो बोरोइंग्स हैं, जो फंड्स उसने लिए हैं, उसकी अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होती है। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास पूरा पैसा खुद का ही होता है, एफडीज होती है, मतलब देयर इज सर्टेन थिंग्स जिन पे बैंक को भी पैसे की कॉस्टिंग होती है। हर बैंक की अपनी अपनी एक कॉस्टिंग है। किसी एक्स बैंक की कॉस्टिंग कम है तो मे बी वो आपको अच्छे रेट पे लोन दे दे, किसी बैंक की जो कॉस्टिंग है थोड़ी ज्यादा है तो मे बी थोड़ा 10, 15, 20 पैसे आपको महंगा रेट दे। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक, बट initially you have to approach your existing bank for cut down your existing ROI. Right. And so you said ki if I go to my bank they will adjust my interest rate with some minimal charges and all. For doing the balance transfer also, are there any charges? Yes sir, there is some charges, but again it's very bank to bank. कुछ बैंक बड़ा ही nominal charge देते हैं, कुछ बैंक charge नहीं भी लेते हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ सर इसका रीजन क्या है कि देखिए किसी भी लोन का जो रेट है वो डिसाइड होता है कि उस लोन को लेंड करने में कितना रिस्क है बैंक का। इसलिए आप देखोगे होम लोन के कंपैरिजन में ऑटो लोन थोड़ा महंगा है, पर्सनल लोन थोड़ा और महंगा है, बिजनेस लोन और ज्यादा महंगा है। उन सब का रीजन यही है कि उनमें डेलिक्वेंसी ज्यादा है, जो पैसा बैंक बिजनेस लोन में दे रहा है उसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल को पैसा कितना वापिस आएगा नहीं आएगा, बहुत से पैरामीटर्स है जिन पर रेट डिसाइड होते हैं। तो ऐसे ही होम लोन की अगर मैं बात करूं, आपका किसी एक्स बैंक से मान लीजिए 8.5% पे होम लोन चल रहा है, आपको नया बैंक वाई एक अप्रोच करता है और बोलता है सर मैं आपको ना नए कस्टमर को तो 8% पे दे रहा हूं बट मैं आपको 790 पे दे दूंगा, मैं 10 पैसे और कम दे दूंगा। वो इसलिए करता है क्योंकि जिस बैंक के साथ आप लोन चला रहे हो पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से, वो ये देखता है कि जो कस्टमर पिछले 5 साल से एक बैंक के साथ अच्छे तरीके से रिपेमेंट कर रहा है, रेगुलरली ईएमआई दे रहा है, तो वो मेरे साथ भी रेगुलर रहेगा। ठीक है, तो जो उसका रिस्क है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कंपेयर हो गया एज कंपेयर टू न्यू कस्टमर, तो वो उसका बेनिफिट दे देता है आपको, 10-5 पैसे मार्केट से आपको कम ऑफर कर देगा। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कुछ बैंक आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं लोन ट्रांसफर करते हुए, कुछ बड़ी नॉमिनल लेते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक। राइट, सो दिस इज योर एग्जिस्टिंग बैंक व्हिच विल टेक, जिस पे आप ट्रांसफर कर रहे हो वो भी लेगा कोई चार्ज? नहीं, एग्जिस्टिंग बैंक जब आप उस पर लोन बंद करने जाओगे तो वो तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा, वो तो सिर्फ आपसे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वही लेगा, प्लस जो ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट है वही चार्ज करेगा, कोई क्लोजर चार्ज नहीं लेगा हाउसिंग लोन में आपसे। बट जो नया बैंक है
वो मे भी आपसे कुछ चार्ज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक आपको बेटर डील दे रहा है, कौन आपसे चार्ज नहीं ले रहा है, कोई हिडन चार्जेस नहीं ले रहा है। दैट इज समथिंग यू हैव टू एक्सप्लोर बिफोर गोइंग अहेड। एंड ये जो प्रॉब्लम नहीं करता है कोई एग्जिस्टिंग बैंक, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आपके घर के उसके पास होंगे, बाकी सारा आपके पास उसके पास कोलैटरल होगा। सो विल दे ट्राई टू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स, विल दे अलाउ मी टू ट्रांसफर द लोन इजीली टू अनदर बैंक? नॉट रियली, टू वेरी फ्रैंक सर। किसी भी एग्जिस्टिंग बैंक के पास आप हैं, किसी भी बैंक के पास है, उसके बड़े अच्छे कस्टमर है आप, तो उनसे आप उनको जब छोड़ के जाएंगे तो तकलीफ तो होगी, वो भी चाहेंगे कि आपको ना जाने दें। तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है जो दूसरा बैंक आपको दे रहा है वो आपको दे दें वो। लाइक मैंने जैसे बोला कि अभी 8.5 चल रहा है फॉर एग्जांपल आईसीसी का, कोई बैंक आपको 7.9 दे रहा है, तो आप उनको बोलो मुझे 7.9 मिल रहा है, तो आपको 7.9 दे दे, देन देयर इज नो पॉइंट ना ऑफ शिफ्टिंग दैट लोन। बट वो आपको रेट भी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको वहां से जाना पड़ेगा। एक दो पेपर्स उनसे चाहिए होते हैं जिनको हम यूजुअली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और आउटस्टैंडिंग लेटर बोलते हैं। थोड़ा टाइम लेते हैं उसके लिए 10-5 दिन, बट वो ऐसा नहीं है कि आपको मना कर दें या उसके लिए अलग से चार्ज लें या आपको कुछ ऐसा कुछ मेंटली या किसी भी तरीके से परेशान करें, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी एक प्रोसेस होती है, सो इफ विल गो बाय द प्रोसेस, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है सर। राइट। सो बट यू नो समटाइम्स आई मे थिंक कि जो मैंने इंटरेस्ट इस बैंक को दिया है फॉर द एग्जिस्टिंग लोन, that will be wasted if I shift the loan to the new bank, because the new bank will start charging the interest from first EMI. What is your take on this? सर सी फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि बड़ा ना एक मिथ है इस तरीके का कि मैंने 3 साल एक बैंक में ईएमआई दी है, 3 साल तक इंटरेस्ट दिया, तो मेरा तो इंटरेस्ट खराब ही हो जाएगा, क्योंकि बैंक तो शुरू में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो 3 साल तक उन्होंने इंटरेस्ट ले लिया, अब आप नए बैंक में ले जाओगे वो फिर से मेरे से शुरू से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखिए सर, होता है क्या है कि इंटरेस्ट जो चार्ज होता है ना वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल आपने 20 साल के लिए अगर आपने लोन लिया था किसी बैंक से, ठीक है, अब 3 साल तक आपने रिपे कर दिया, अब 17 साल बचे हैं आपके पास, तो जब आप नए बैंक में लोन ट्रांसफर कर रहे हो तो आप अपना टेन्योर 17 साल ही चूज करो वहां पे। तो एंड ऑफ द डे जो इंटरेस्ट आपने 3 साल का दे दिया है, 3 साल वो फंड्स को आपने यूज किया है, तो अभी नए बैंक में आए तो वहां पे आपको 17 साल ही देना है, दोबारा से 20 साल नहीं देना है आपको। तो जो आपने 3 साल इंटरेस्ट दिया है, तो उसके बदले में आपने 3 साल फंड्स को यूज भी किया है, तो इंटरेस्ट वेस्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप एक चीज और देखोगे जो कि यूजुअली लोग शायद देखते नहीं है, कि जो आपकी ईएमआई जा रही होती है सर, ईएमआई इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप 3 साल के बाद 37वें महीने पे लोन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 37वें महीने की जो आपकी एग्जिस्टिंग बैंक की ईएमआई के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ब्रेकअप चेक करोगे, प्लस जो नया बैंक जो आपने जहां पे लोन शिफ्ट किया है उसकी पहले मंथ की ईएमआई का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ब्रेकअप चेक करोगे, देन यू गो टू नो कि आप जो एग्जिस्टिंग बैंक थे जहां 37वीं ईएमआई आप देने वाले थे उसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे थे, जबकि आप नए बैंक में जो पहली ईएमआई दे रहे हो उसमें कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। दैट्स हाउ यू स्टार्ट सेविंग। Right. I see Vikram Arora has raised his hand. We'll save the questions for the end, Vikram, unless it is very urgent, something that you want to ask. Otherwise, we'll take up all the questions in the end. सर मुझे ना ये पूछना था कि जैसे एनबीएफसी में है, जैसे मैंने उसमें अप्लाई किया था नावी में, सो दे आर गिविंग अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक 7.4%। सो मुझे ये पूछना था कि इन एनबीएफसी जैसे नावी वगैरह से कुछ रिस्क रहता है कंपेयर टू लाइक ट्रेडिशनल बैंक्स? बस ये क्वेश्चन था मेरा। सो नावी ने आपको होम लोन ऑफर किया है सर? हाँ, नावी का एक होम लोन का भी शुरू हुआ है अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लोन। सो उसमें देयर इज लाइक अ कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस उनकी ऐप पे ही। तो उस पे लाइक दे हैव सम मतलब जो प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, उसके लिए उन्होंने दे हैव गिवन अ 7.4% का इंटरेस्ट, व्हिच इज लाइक मच लेस, ऑलमोस्ट 0.5% लेस देन ट्रेडिशनल बैंक्स। तो मुझे ये पूछना था कि उसमें लाइक कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक क्या रिस्क रहता है बेसिकली? नहीं सर, देखिए नावी वैसे नावी खुद तो लैंड कर नहीं रही है, हाउसिंग लोन का लाइसेंस ही नहीं है उनके पास। आई एम श्योर दे मस्ट बी एसोसिएटेड विद सम बैंक्स। होता क्या है कि सर जैसे आप गाड़ी के शोरूम पे जाते हो कोई भी गाड़ी के लिए, तो पेट्रोल वेरिएंट का जो बेस मॉडल होता है ना उसका प्राइस होता है। तो ऐसे मार्केट में कुछ बैंक्स हैं लाइक सिटी बैंक, दे आर ऑफरिंग अराउंड 7.4%, बट दैट इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव। बड़ी लिमिटेड प्रोफाइल है, बड़ी लिमिटेड ही प्रॉपर्टीज हैं, और बड़ी मैं बोल रहा हूँ 100 में से कोई 2 केस उसके लिए 2 कस्टमर हैं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट में फुलफिल बैठते हैं। बट एंड ऑफ द डे अगर मुझे ऐड करना होता है या मुझे अपने आप को प्रमोट करना होता है, तो मैं बेसिकली जो मेरा मिनिमम रेट है मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। सो दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट, बट उनका खुद की अपनी फंडिंग नहीं है सर।
इट्स बेसिकली ऐप, उन्होंने क्या किया, बैंकों के साथ अपनी ऐप को सिंक कर दिया है उनके सिस्टम से। आपको पेपर उनकी ऐप पे अपलोड करने हैं, बट दे विल गो टू द बैंक और फिर वहां से आपकी लोन प्रोसेसिंग होती है। Right. Does that answer your question, Vikram? Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, Abhi, you said कि we can change the tenure while transferring the loan. Can we also change the EMI while shifting the loan? Absolutely, sir. So, जब भी आप लोन को ट्रांसफर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 7.5 का जो आपका एग्जिस्टिंग रेट है उसके बदले में आपको 7.9 का रेट दे रहा हूँ, तो उसका दो चीजों पे इफेक्ट आता है। या तो आपका टेन्योर कम हो सकता है सिंस आपका एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, या आपकी ईएमआई कम हो सकती है। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप ईएमआई देने में कंफर्टेबल है, जो आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है, तो आप अपना टेन्योर को ही कम कराइए। अगर आप टेन्योर कम कराओगे तो आपको ज्यादा सेविंग होगी। Right. I have a calculation as well. To share the calculation in the group. Okay. It's an Excel sheet. It's an Excel sheet, right? Oh, excellent. And what about the income tax rebate? If you shift the loan, will it still be eligible for income tax rebate? Any difference in that, 80C and 24B? No, sir. All the rebates will be available. Since आप अपने हाउसिंग लोन को हाउसिंग लोन के अंडर ही ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो भी इनकम टैक्स के रिबेट है अंडर सेक्शन 24B एंड 80C, that will be there. So you can claim both the rebates. अगर आपने मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने लोन ट्रांसफर कराया है, तो आप दो सर्टिफिकेट लेंगे। 1 अप्रैल से जब तक आपने शिफ्ट कराया है उस डेट तक आपने एग्जिस्टिंग जो आपका प्रीवियस बैंक था उससे लेंगे, और जिस डेट में आपका लोन शिफ्ट हुआ है उस डेट से, और नेक्स्ट 31 मार्च तक आप नए बैंक से आप लेंगे। सो यू हैव टू प्रेजेंट 2 सर्टिफिकेट फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। Right. So apart from BT, is there any other alternative? Because for BT you have to process the whole loan application, I believe, as you did initially. So is there any other option? Yes sir, as said earlier, this is the best option कि आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक को अप्रोच कीजिए। ठीक है, उनको बताइए कि मेरा रेट ज्यादा चल रहा है या आपकी कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। इफ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ कैश आउट, टॉप अप और सम रेनोवेशन लोन, सो गो टू योर ब्रांच, और जो भी आपका लोन जो भी आपका चैनल है जिससे भी आप अपने लोन प्रोसेस करवा रहे हैं, तो उनसे बात कीजिए, अपने एग्जिस्टिंग बैंक से बात कीजिए। या तो वो आपका रेट कम कर देंगे, या आपकी रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है अगर उनकी पॉलिसी में फिट बैठेगी तो दे डेफिनेटली ट्राई टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। सो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि पहले आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक को अप्रोच कीजिए, वहां से आपकी सारी चीजें फुलफिल हो जाती है तो बेटर है। क्योंकि अगर आप लोन को प्रोसेस कराओगे, एंड ऑफ द डे यू हैव टू सबमिट द एंटायर प्रोसेस, योर फाइनेंशियल्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी, जो भी डिफरेंट वेरिफिकेशंस है वो सारी एग्जीक्यूट होगी, एंड दैट प्रोसेस विल टेक 10 to 15 वर्किंग डेज। और आपको अपने एग्जिस्टिंग बैंक से भी 1-2 पेपर्स देने होंगे, फिर वो प्रॉपर्टी पेपर्स वहां से कलेक्ट करके नए बैंक में सबमिट कराने होंगे। सो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट हाँ फिर भी लोग ट्रांसफर कराते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका रेट का बेनिफिट है। एट द सेम टाइम उनकी कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि नया बैंक ही फुलफिल कर रहा होता है। सो वी यूज्ड टू डू सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। Right. And how much does the new bank help you out to get you as a customer? They also must be wanting to be keen, and will they help you out in this process? Sorry, I missed your question, sir. Please. I'm saying, how much does the new bank help you out? Because they would be keen to gain you as a customer. So absolutely, sir. Sir, see, the new bank, we are the representative of new bank. So we'll do the entire end-to-end processing for on behalf of new bank. Okay, right. The entire processing will be done at your place, at your doorstep. Paper will be collected from your office or residence. Okay, and all the verification will be done very silently. So they'll try to not to bother the customer. But you have to just visit your existing bank for issuance of couple of documents and for the collection of original property papers, because your existing bank will hand over your property papers to you only. That's it. Otherwise, जो नया बैंक होगा तो वो आपको मतलब किसी तरह की वो obviously they don't try to give any kind of botheration to you. Right. But tell me, you said कि you approach your old bank for a change in rate and all. How much flexibility do they actually have? And if they have that flexibility, don't they automatically give it? Like एक variable rate वाला loan जैसे होता है. मेरी understanding rate. राइट, जो करंट वेरिएबल रेट है नाउ रेट्स आर लिंक्ड टू रेपो रेट। सो रेपो रेट अभी जैसे बढ़े हैं तो बैंक ने बाय डिफॉल्ट अपने आप बढ़ा दिए, वो तो हमें लगता भी बैंक बढ़ाने में तो अपने आप ही बढ़ा देता है, उसके लिए तो आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बट जब रेट कम हुए थे लास्ट रेपो रेट, तो बाय डिफॉल्ट रेट्स कम हुए भी थे।
तो जिनके लोन रेपो रेट पे चल रहे हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट उनका रेपो रेट चेंज होगा तो उनका एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट कई बार क्या होता है सर कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आज की बात करूं, करंट रेपो रेट इज 5.4%, ओके, नॉर्मल बैंक्स आर ऑफरिंग अराउंड 8% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एवरेज वाला मार्केट में 8% ही चल रहा है। दैट मींस बैंक आर चार्जिंग 1.6% ऑफ मार्जिन ओवर एंड अबव रेपो रेट। 5.4 plus 1.6, 8% is your applicable rate of interest. Sorry, 2.6. Okay, sir. So जो ये 2.6 का जो मार्जिन है ना सर, ये एक गेम चेंजर होता है। आज अभी 2.6 का मार्जिन है, मे बी हम जैसे जैसे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की तरफ जाएंगे, मतलब मार्च की तरफ, तो बैंक क्या करते हैं, अपना मार्जिन थोड़ा स्क्वीज करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू एक्वायर द मोर बिजनेस, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर कल को रेपो रेट नहीं बढ़ता है तो मार्च तक ये जो बैंक है 780, 770, 760 तक भी रेट देना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ है कि रेपो रेट कम हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ है कि आज जो लोन ले रहा है उसको 8% मिल रहा है, आज से 5 महीने बाद जो लोन ले रहा है उसको 760 मिल रहा है। उसमें कुछ नहीं हुआ है, उसने जो बैंक का जो मार्जिन था, बैंक ने अपना मार्जिन स्क्वीज कर दिया है सर एक्चुअली, ठीक है। तो जिन्होंने आज लोन लिया है, अगर वो 5 महीने बाद उसी बैंक के पास जाएंगे तो उनको लगेगा कि नया लोन उनको 7.6 मिल रहा है। तो जो 40 पैसे का जो डिफरेंस आ गया है ना सर, उसके लिए आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा। रेपो रेट के लिए आपको बैंक को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए यू हैव टू अप्रोच द बैंक। किसी मैंने जब लोन लिया था उस टाइम जो आपके मार्जिन थे वो 2.6 थे, बट अभी जो आप मार्जिन दे रहे हो 2.2 दे रहे हो, तो मेरा भी मार्जिन कम करो। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू रिक्वेस्ट देम, अदरवाइज रेपो रेट पे आपका रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पर आपको पता है, एज अ नॉर्मल कस्टमर मेरे को कैसे पता चलेगा कि अभी बैंक इतने, मतलब यू हैव टू कीप अ ट्रैक, यू हैव टू कीप चेकिंग, किस तरह? यू हैव टू कीप अ ट्रैक, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सर हम जैसे लोगों को वो काम दे दीजिए। वी आर हियर टू ट्रैक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यही काम है सर जो हम लोग करते हैं। सो टाइम टू टाइम जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका हम सारा पोर्टफोलियो और उनकी जो भी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं वो सब ट्रैक करते रहते हैं, किस रेट पे था क्या नहीं था। और यूजुअली एडवाइस करते रहते हैं, या तो कस्टमर अपने एग्जिस्टिंग बैंक पे जाके उसका अपना रेट में करेक्शन करा लेता है। अगर नहीं हो पाता है तो वी यूज टू सजेस्ट देम टू ट्रांसफर देयर लोन टू सम अदर बैंक फॉर बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। Right. So for this service, are there any charges that you charge? No, nothing, sir. Absolutely free, sir. There's no charge. Right. Only bank fees you need to be paid. Whatever the fees will be there, then that's again it's very nominal fee, but we don't charge anything, sir. Right. Excellent. So, Shiv, I think as far as I am concerned, I am quite clear and I have understood what you had to say.